President of West Bengal, Mr. Rahul Khaitan, to come forward. Mr. K.L. Ganju, Consul General of Comoros, Mr. Rajesh Paharia, Mr. Kanish Marchanda, Sanjeev Ahuja, and Mr. Mohit Murgai in Calcutta from the West Bengal chapter. So I would like everyone to give a big round of applause for them for coming in short notice of time here. I'll just speak briefly about our federation. Indian Rice Export Federation is a multi-state federation representing an extensive network of stakeholders in Indian rice export sector. Our federation is strategically headquartered in New Delhi and having its presence in all across India, starting from Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Telangana. So our federation is present everywhere. Every state has its own chapter and its members. We have about 4,000 members, almost 4,000 plus members across the country, and I'm very proud to say that the 40% of the global trade that is happening from India is by our members in the association, in the federation. And we cover almost 193 countries. IREF operates under the motto of one nation, one trade, one policy. So our motto is very clear that government policies should be aligned with our federation so that we can work easily, we can work smoothly, and there is no confusion or hassle while doing any business. I am also very proud to say that companies like ITC, Adani, Reliance, Tata, Kripco are part of our federation, and it also makes our federation very strong. With support from all members sitting here and our president Dr. Prem Garg, we will achieve the desired heights, and our federation will help everyone to stay connected, which will benefit all of us. Now I just और IRF के अंदर इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, जिसके अंदर आप लोगों ने एक वेस्ट बंगाल के जो अभी तक एकदम से अबाउट 125 के करीब लोग जुड़ चुके हैं इसके साथ में, सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात मैं करूँगा। पूरे इंडिया के अंदर इसके 12 स्टेट के अंदर ऑफिस खुल चुके हैं अभी तक, और गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रेंथ होती है कोई भी फेडरेशन। आप लोग समझते हैं जो बीच बीच में लोगों का एक निकल जाता है एसोसिएशन, मैं उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। फेडरेशन और एसोसिएशन में क्या फ़र्क है कि आज जो हमारी ये फेडरेशन है, इस फेडरेशन का जन्म 20 जुलाई 2023 को हुआ, जिस दिन राइस का पहला बैन करने का वाइट राइस को ऑर्डर आया, और सेम डे हम लोगों ने प्लानिंग की और उसी दिन शुरुआत हुई, और 21 तारीख को इसके 150 मेंबर बन गए एक दिन के अंदर जो इवेंट थी। उसी के साथ हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दी और फेडरेशन की एक ताकत महसूस हुई। जो मैं बताना चाह रहा था कि एसोसिएशंस जो होती हैं वो फेडरेशन की मेंबर होती हैं। अभी हमारी 9 एसोसिएशन इंडिया की मेंबर हैं, 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन की मेंबर है, और एक काउंसिल जो है वो एक मेंबर है। बाकी जो इंडिविजुअल जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, पैकिंग बनाने वाले लोग हैं, ब्रोकर्स, शिपिंग एजेंट्स और फॉरवर्डर्स, क्योंकि राइस का बिजनेस कोई भी इन सब के बगैर नहीं हो सकता। इन सब का एक कॉम्बिनेशन से एक परिवार है। फ्रेट फॉरवर्डर यदि अच्छे फ्रेट नहीं देगा तो हम एक्सपोर्ट की, शिपिंग की अच्छे काम नहीं कर सकते। पैकिंग मटेरियल वाले एक अच्छे नहीं होंगे तो पैकिंग को डेवलप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक लेक ऑफ है जिसके अंदर हमने इस फेडरेशन के अंडर अभी एक DRA डिवीजन बनाया, जिसके अंदर अभी तक 14 केस रजिस्टर हुए, और आपको बड़ा बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे, उसमें 13 मैटर्स सोल्व कर दिए गए पिछले 10 दिन के अंदर। यहाँ पे दौड़ डाला गया, कुछ शिपिंग लाइन थी। by
বাইরে খুব একটা যায় না, 10-15% বাইরে যায়, তার বেশি যায় না। আর আমাদের বাংলার চাল বিদেশে অনেক সুনাম আছে, আর ডাকা হয় ওই নামেই ওখানে ওকে ডাকা হয়। বিদেশে গেলে চালের নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, যেমনি রত্না চাল লং গ্রেন হয়ে যায়, আর অন্য অন্য জায়গার মানে শর্ট গ্রেন বলা হয়, মোটা চালকে আমাদের স্বর্ণকে স্বর্ণ বলা হয়, আর গোবিন্দভোগকে গোবিন্দভোগ বলে বিক্রি হয় আমাদের চাল। आपका नया फेडरेशन ये बना है, बोले मंच में हाँ हाँ, ये फेडरेशन से जो मेंबर हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? इनसे ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स सुविधा को सेंट्रल लेवल पे अब हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे हम लोग को क्या दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी कुछ मेंबर जो ऐसे हैं कि असुविधा में आपके पास आए हैं क्या पश्चिम बंगाल हमने से? बहुत असुविधाएं सॉल्व हुई है। जब गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले जब नॉन बासमती पे बैन लगाया था वाइट राइस पे, बहुत लोगों के कंटेनर फंसे हुए थे। हमारे फेडरेशन ने इनिशिएटिव लेके एक सेकेंड नोटिफिकेशन आया, जिससे सबकी सुविधाएं सॉल्व हुई। जिनके कंटेनर बाहर खड़े थे, जिनके कंटेनर पोर्ट में अंदर जाके शिपमेंट नहीं हो पाई, उनको बहुत हेल्प हुई। इस रीजन में कितना मेंबर है आपका? अभी हम लोग के 100+ मेंबर्स हैं। थैंक यू। मेरा नाम राहुल खेतान है। थैंक यू।